Assalamu alaikum everyone, this is me Hadika Islam and once again we are back with another video. In this video we will talk about the first module of our IELTS and that's no doubt the listening section. So let's take a great introduction of our listening and what we have to do in the proper exam, what we are going to how to perform the listening, how to tackle the paper and how to crack our listening section with a great band. So this is the very normal question that I always got from everyone. So today I'm back again with these kind of questions and having an answer about it. So the first thing that I would like to tell you about the basic introduction of our listening section, that how much time we have for the paper, plus how many questions we have in the exam and which paper that we have to attempt first while attempting the IELTS. So I need to tell you the brief detail about it. I need to know that first thing that you have to do in your IELTS exam when you entered an examination hall. You got your first paper that would be based on listening and the listening section would be based on properly 40 minutes, right? And this timing would be divided into the two sections. The first 30 minutes would be for the listening, and keep in mind, it's not specifically for the listening. You have to attempt 3 proper things with each other. Just like you have to perform 3 tasks. You have to listen the audio, read the paper, and solve it out while reading it up and listening it up. So it means एक ही वक्त पे आपको तीनों काम एक साथ करने पड़ते हैं. Keep that thing in mind. It's not only the listening. You have to perform 3 things together. Then there will be another section. You have it separately 10 minutes और इन 10 मिनट में आपको करना क्या होता है? If you remember that when you guys are attempting your matriculation exam and intermediate exams, उसमें आपको एक बबल शीट मिलती थी. If you remember that. जैसे आपको वो बबल शीट मिलती थी, what you have to do, आपको एक MCQs का पेपर मिलता था. You have to read the paper, pick up the answer और उसके बाद आपको बैकएंड पे जाके वो बबल्स फिल करने होते थे. That I have to transfer my answers over there. Same in the case in IELTS exam, you have a properly block sheet. जैसे वहाँ बबल शीट होती थी, IELTS में आपके पास एक ब्लॉक शीट होती है. And in that block sheet, what you have to do is आपने वो जो 30 मिनट में तमाम तरह आंसर्स लिसन करके, पेपर रीड करके, जो सॉल्व करके उस पेपर के ऊपर लिखे हुए हैं. दिस पेपर वुडंट बी चेक बाय एग्जामिनर, कीप इन माइंड. यू हैव अ सेपरेटली 10 मिनट्स और आपको करना क्या है, उन 10 मिनट के अंदर अंदर वो तमाम तरह आंसर्स जो आपने पेपर पे लिखे हैं इनको उस ब्लॉक शीट के ऊपर ट्रांसफ़र करना है. इज दैट क्लियर? सेकेंड थिंग इज दैट you are not allowed to cross out your instruction. अगर instruction में लिखा हुआ है that you have to give us a one word answer, so you are bounded to give us a one word answer. आप इससे ऊपर नहीं जा सकते. You can never cross this boundaries that the examiner gonna give you. आप अगर ये कहते हैं कि I got an answer within the 2 words, but unfortunately in the instruction is properly written over there that you guys have to attempt only the one word answer, but unfortunately while solving the paper you were out of mind. You wouldn't get an answer that you just become so energetic at the time. Oh my bad, I got my answer. और आप जज्बाती होकर फटाफट 2 words लिख देते हैं and you forgot it कि ऊपर अभी मैंने instruction में पढ़ा था I'm bounded towards 1 word. So keep in mind you have to follow these things. Secondly, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं जनाब इफ़ आई एम ट्रांसफरिंग माई आंसर कैन आई गो फॉर चैटिंग काइंड ऑफ जो हमारा जो चैटिंग स्टाइल होता है लिखने का, स्पेल आउट का. सो कीप इन माइंड इट्स अ लैंग्वेज टेस्ट. लैंग्वेज के टेस्ट में लैंग्वेज की गलती इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त होती है. सो अगर आप कहते हैं कि मैं स्पेलिंग की गलती कर दूं, मैं पंक्चुएशन की गलती कर दूं, या फिर मैंने कोई अल्फ़ाबेट अपनी मर्ज़ी से कैपिटल में लिख दूं या स्मॉल में लिख दूं. कुछ लोगों को आदत होती है वो मिक्स लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं. आधी ABC वो छोटी यूज़ करते हैं, आधी बड़ी, अपनी मर्ज़ी से कोई भी वर्ड बीच में कैपिटल लिख दिया. सो यू आर नॉट अलाउड टू गो फॉर इट. या तो आप प्रॉपरली फुल कैपिटल लेटर यूज़ करें, पूरा लिखें ही, सारे ट्रांसफ़र ही आप कैपिटल लेटर में करें. यू हैव टू गो फॉर इट. बट अगर आप इस तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करें, इससे आपके नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली डिडक्शन मार्क्स की होगी ही होगी. सेकेंड थिंग इज दैट अगर आपकी स्पेलिंग की गलती, आपको वर्ड एक्यूरेट समझ तो आ गया बट यू डोंट नो द एक्यूरेट स्पेलिंग ऑफ दैट वर्ड, और आप लिखते हुए अपनी मर्जी से कुछ भी स्पेलिंग लिख देते हो या आप अपना चैटिंग का कोई वर्ड लिख देते हो जिस तरह आप चैट में इस्तेमाल करें. फॉर एग्जाम्पल यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, वर्ड आया स्कूल, स्पेलिंग वो लिख रहे होते हैं SKOL, क्योंकि चैटिंग में नॉर्मली इस तरह का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा होता है एंड दे फॉरगॉट इट कि SCH इस तरह से उन्होंने स्पेलिंग लिखनी है. अगर उन्होंने वही वाला चैटिंग वर्ड वहाँ पे यूज़ कर दिया सो इट मीन्स इट्स गेटिंग डाउन, आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि आपने स्पेलिंग की गलती कर दी. सो यू हैव टू गो फॉर दिस थिंग. प्लस अब सवाल यह है कि एक्चुअल कितने
क्वेश्चंस होते हैं जो हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। 40 मिनट मैंने आपको बता दिए कि 40 मिनट का पेपर है, इसकी फर्दर डिवीजन भी बता दी, 30 + 10 30 मिनट्स हमारे पेपर सॉल्यूशन के और 10 मिनट आंसर ट्रांसफर के। अब आ जाते हैं कि टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं। सो ओवरऑल इस टाइम पीरियड के अंदर यानी कि 40 मिनट में आपको टोटल 40 सवालों के ही जवाब देने होते हैं। अब सवाल ये है कि वो क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, क्या वो सिर्फ और सिर्फ मतलब ऑब्जेक्टिव्स होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस किए जा रहे होंगे। तो कीप इन माइंड क्वेश्चंस भी कोई एक टाइप का नहीं होता। इट वुड बी ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वी पीपल हैव टू अटेम्प्ट। वो MCQs हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती हैं, मैचिंग्स हो सकती हैं, टेबल कंप्लीशन हो सकता है, मैचिंग इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैचिंग मतलब जिसे हम कहते हैं हेडिंग्स हो सकती हैं। इट कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऑलमोस्ट 7 से 8 तरह के आपके पास क्वेश्चन आते हैं। खैर यूजुअली मैचिंग हेडिंग का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टॉप पे होता है आपके रीडिंग सेक्शन में, बट येस जो लिसनिंग सेक्शन है आपका उसमें यूजुअली मैचिंग इन्फॉर्मेशन आ जाती है, MCQs बहुत ज़्यादा होता है, टेबल यहाँ तक कि मैप आ जाते हैं बहुत सारी जगह पे। सो यू हैव टू सॉर्ट इट आउट। डायग्राम होंगी और इस तरह के डिफरेंट लेबल डायग्राम है या फिर कुछ भी, बट यू हैव टू फॉलो 2 to 3 थिंग्स। एक अच्छा लिसनर इज़ एन ओनली थिंग दैट कैन बी अ गुड स्पीकर। सो आई ऑलवेज से आप जैसे ही अपनी लिसनिंग को बेहतर करना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो नेटिव स्टाइल है इट विल कम अ वेरी गुड इन द फ्लुएंसी। आप यू ऑटोमेटिकली अच्छी अंग्रेजी भी बोलना शुरू कर देंगे। सो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ थिंग यू गाइस कैन लर्न इट आउट। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो आई ट्राई माई बेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई लेट यू नो कि बेसिकली इस पेपर को सॉल्व कैसे किया जाता है। वट वुड बी द स्ट्रैटेजी अगर मैं अच्छे बैंड्स लेके जाना चाह रही हूँ या लेके जाना चाह रहा हूँ। सो वट वुड बी द एक्यूरेट थिंग दैट आई हैव टू डेवलप और किस तरह से मैं इसको मार्क्स को जो है वो सॉर्ट आउट कर सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड विल लव टू सी यू विद अनदर वीडियो इंशाल्लाह। सो